Hello everyone. In our previous video, we have discussed the basic difference between void and voidable marriages. हमने types of marriages discuss करे थे that are valid, void and voidable. And void and voidable marriages के बीच का हमने basic difference discuss किया था. And in this video, we are going to discuss void marriages first. So void marriages have been given under section 11 of the HMA. Let's come to that. We know that there are certain conditions for a valid Hindu marriage given under section 5. ठीक है, अभी हम section 5 की उन conditions को void and voidable marriages के साथ समझेंगे क्या होता है. ठीक है, section 11, any marriage solemnized after the commencement of this act shall be null and void and may, on a petition presented by either party thereto against the other party, be so declared by a decree of nullity if it contravenes any one of the conditions specified in clauses 1, 4 and 5 of section 5. दैट मीन सेक्शन 5 जिसमें कंडीशंस फॉर अ वैलिड हिंदू मैरिज गिवन है, उसमें कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 4 एंड कंडीशन नंबर 5 का अगर कॉन्ट्रावेंशन होता है, अगर वो वायलेट होती हैं, तो उस केस में उस मैरिज का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ वॉइड मैरिज. दैट इज, इट विल बी नो मैरिज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. So let's see what are conditions 1, 4 and 5 under section 5. Yes, section 5. A marriage may be solemnized between any two Hindus if the following conditions are fulfilled, namely, neither party has a spouse living at the time of marriage. ठीक है, जिस टाइम मैरिज सोलमनाइज होने की बात हो रही है, neither party should have a spouse living. Suppose there is a person A and there is a person B. Both these parties wants to get married. ठीक है, बट A जो है, A की ऑलरेडी एक वाइफ है W1. ठीक है, एंड A एंड B जिस दिन मैरिज सोलमनाइज करने की बात करते हैं, दैट मीन्स लेट्स सपोज ऑन 31st of July दे डिसाइड टू सोलमनाइज देयर मैरिज, एंड बाय चांस क्या होता है, W1 की डेथ हो जाती है 31st जुलाई को ही. But we know as per section 7 the marriage is solemnized when the 7th step is taken. ठीक है, जब 7 फेरे पूरे होते हैं तब हम मानते हैं कि हाँ वैलिड सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज हो गया. तो एट द टाइम ऑफ मैरिज, एट द टाइम ऑफ सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज अगर स्पाउस लिविंग है तो वो बिगमी हो जाएगा. ठीक है, इट विल बी कंसिडर्ड एज बिगमी, एंड उस केस में जो मैरिज है वो वैलिडली सोलमनाइज नहीं मानी जाएगी. मान लो ए और बी की शादी शाम में होने वाली थी. ठीक है, 8 PM का टाइमिंग गिवन था वेडिंग इनविटेशन पर. ठीक है, एंड W1 की जो डेथ हुई है वो हुई है सुबह के 7 बजे. तो इस केस में ए और बी की मैरिज वैलिड मैरिज मानी जाएगी. इट विल नॉट बी अ बिगेमिस मैरिज. ठीक है, सो वॉइड मैरिज नहीं होगी, उस केस में वैलिड मैरिज होगी. ठीक है, डजेंट मैटर व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ ऑफ W1. W1 किस वजह से मरी है, डजेंट मैटर. ठीक है, पहले मरी है, किसी भी टाइम मरी है, डजेंट मैटर. ठीक है, बट अगर मैरिज सोलमनाइज होने के बाद उसकी डेथ हुई है, तब भी मान लो मैरिज सोलमनाइज हुई है सुबह के 4 बजे, at 4 AM the marriage has been solemnized, and W1 dies at 4:01 AM, then also A will be considered as liable for bigamy. So neither party should have a spouse living at the time of marriage. मान लो A का भी spouse living है W1, B की भी कोई spouse living है मान लो H1, एंड तब भी A और B आपस में डिसाइड करते हैं दैट दे वांट टू गेट मैरिड. ठीक है, उस केस में भी वैलिड मैरिज नहीं मानी जाएगी. Even if W1 consents or H1 consents, then also the marriage will not be considered as valid marriage. ठीक है, जो एग्जिस्टिंग स्पाउस है, जो लिविंग स्पाउस है, वो अगर कंसेंट भी दे रहा है ना खुद का कि जाओ तुम शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं कभी कोई केस नहीं फाइल करूंगी, कुछ नहीं करूंगी, उस केस में भी वो वैलिड मैरिज नहीं मानी जाएगी. बिकॉज इवन द कंसेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ दैट पार्टी कैन नॉट वेव ऑफ दिस
particular liability. Now, before the enactment of this act was enacted in 1955, right? So before the enactment of this act, there was unlimited polygamy allowed. ठीक है, polygamy तो allowed थी ही, and there was this provision of unlimited polygamy. कितने भी partners हो सकते थे, कितने भी spouses हो सकते थे एक male के, एक man के, ठीक है? But this was not the case with women. But after the enactment of this act, monogamy has been made the rule. The rule that has been given under section 5 subclause 1, this is monogamy. ठीक है, कि एक ही पार्टनर हो सकता है एक टाइम पर, दो पार्टनर्स नहीं हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स भी नहीं हो सकते हैं. सो दैट मीन्स बिगेमी और पॉलीगैमी, these two have been made illegal. ठीक है, ये दोनों इलीगल हो गई है एज पर सेक्शन 5 क्लॉज 1. नाउ वी नो दैट मैरिज इज इलीगल. ठीक है, अगर बिगेमस मैरिज है या पॉलीगैमस मैरिज है तो वो मैरिज इलीगल होगी. वी नो द कॉन्सिक्वेंस दैट हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन 11. ठीक है, कि अगर एक पार्टी है उसका स्पाउस ऑलरेडी लिविंग है, सो दैट विल बी द सेकंड मैरिज विल बी कंसिडर्ड एज नो मैरिज एट ऑल. ठीक है, इट विल बी अ वॉइड मैरिज एज पर सेक्शन 11. सो दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल section 5 clause 1 should be read with section 11. ठीक है, बट हमारी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है. ये मैरिज सिर्फ इलीगल नहीं होगी, ये पनिशेबल भी है. दैट मीन्स इट इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन 17 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट. लेट्स सी दैट. So section 17 provides punishment of bigamy, and any marriage between two Hindus solemnized after the commencement of this act is void if at the date of such marriage either party had a husband or wife living, and the provisions of section 494 and 495 of the IPC shall apply accordingly. So that means not only is the punishment given under section 17 of the act, ठीक है, वो जो पनिशमेंट है वो डायरेक्ट कर रही है कि तुम आईपीसी के सेक्शन 494 एंड 495 में जाकर देखो कि क्या पनिशमेंट है एग्जैक्टली. बट हमें अपने पर्पसेस के लिए आईपीसी में नहीं जाना है, अब हमें बीएनएस में जाना है. सेक्शन 82 of BNS corresponds with sections 494 and 495 of IPC. So that means the punishment as per section 17 is given under section 494 and 495 of IPC, which is corresponding to section 82 of BNS. ठीक है, so now we'll be going to read section 82 of BNS. Section 82 states marrying again during lifetime of husband or wife. जब husband और wife already है existing and the marriage has not been ended, then in that situation what is the punishment? Whoever having a husband or wife living marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life of such husband or wife shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. So that means अगर तुम्हारा पर्सनल लॉ ये बोल रहा है कि बिगेमस मैरिज वॉइड होगी, तभी सेक्शन 82 में पनिशमेंट मिलेगी. ठीक है, इनफैक्ट सेक्शन 494 स्टेट्स द सेम. ठीक है, बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन ही है सेक्शन 82 और सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी. दे टॉक्स अबाउट सेम थिंग्स. ठीक है, दैट मीन्स अगर मैरिज वॉइड पर्सनल लॉ कर रहा है तभी वो मैरिज पनिशेबल होगी 494 ऑफ आईपीसी में एंड फ्रॉम नाउ ऑन सेक्शन 82 ऑफ बीएनएस. दैट मीन्स Muslims are exempted from this. ठीक है, because Muslims में limited polygamy is allowed.
Limited polygamy allowed. That means a Muslim male can take up to 4 wives. ठीक है, तो 4 वाइफ्स तक के लिए एक लिमिटेड पॉलीगैमी अलाउड है मुस्लिम्स में, बट अगर वो फिफ्थ वाइफ ले रहा है देन इन दैट सिचुएशन अ मुस्लिम मेल विल ऑल्सो बी लाइबल अंडर सेक्शन 82 ऑफ द BNS. Now coming to exception, this subsection does not extend to any person whose marriage with such husband or wife has been declared void by a court of competent jurisdiction, nor to any person who contracts a marriage during the life of a former husband or wife, if such husband or wife at the time of subsequent marriage shall have been continually absent from such person for the space of 7 years, and shall not have been heard of by such person as being alive within that time, provided the person contracting such subsequent marriage shall, before such marriage takes place, inform the person with whom such marriage is contracted of the real state of fact so far as the same are within his or her knowledge. तो यहाँ पर हमें 2 exceptions given है. The first exception is that the earlier marriage has been declared void by the court of competent jurisdiction. डिक्लेयर वॉइड का मतलब है कि अगर वॉइडेबल मैरिज भी थी और डिग्री ऑफ नलिटी अगर ऑब्टेन कर ली गई है तो उस केस में अगर सब्सिक्वेंट मैरिज होती है कॉन्ट्रैक्ट तो वो वैलिड मैरिज मानी जाएगी. ठीक है, एंड इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बिगेमस मैरिज. एंड सेकंड एक्सेप्शन हमें गिवन है कि हस्बैंड और वाइफ में से कोई भी पर्सन अगर 7 साल तक गायब है उस पर्सन की लाइफ से, एंड इनफैक्ट जो उस पर्सन के आसपास के लोग हैं जो नॉर्मली उससे बात करते हैं जिनको पता होता है उस पर्सन के वेयर अबाउट्स के बारे में, दे हैव नो आइडिया अबाउट द वेयर अबाउट्स ऑफ दैट पर्सन. ठीक है, एंड 7 साल तक इज कम्प्लीटली ऑफ द चार्ट्स एंड नो वन नोज अबाउट हिज वेयर अबाउट्स. किसी को नहीं पता कि वो जिंदा भी है या मर गया. जो उसके आसपास के लोग थे उनको पता होता एंड दे हैव नो आइडिया अबाउट हिज वेयर अबाउट्स और वेदर ही इज अलाइव और नॉट. देन इन दैट सिचुएशन द अदर पर्सन कैन मैरी फॉर द सेकेंड टाइम. ठीक है, बट उस केस में एक एक्सेप्शन हमें ये भी दे दिया, एक कंडीशन दे दी, इनफैक्ट नॉट एन एक्सेप्शन, इट इज अ कंडीशन दैट जो उसका स्पाउस होगा, ठीक है, जो टू बी स्पाउस है जिससे वो शादी करना चाहता है वो पर्सन, उसको उसे इन्फॉर्म करना होगा अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स. ठीक है, कि उसका एक ऑलरेडी स्पाउस लिविंग था, ही हैज बीन एब्सेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years एंड नो वन हैज एनी आइडिया अबाउट हिज वेयर अबाउट्स. मतलब जो दूसरा पर्सन है उसको सभी स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए. ही शुड हैव नॉलेज अबाउट द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स. सो दिस इज द कंडीशन गिवन अंडर दिस section. Now section 82 subsection 2 states that whoever commits the offence under subsection 1 having concealed from the person with whom the subsequent marriage is contracted the fact of the former marriage shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. ध्यान दो इस चीज पर. 82 सबसेक्शन 1 में 7 years की पनिशमेंट गिवन थी एंड 82 सबसेक्शन 2 में 10 years की पनिशमेंट गिवन है. वाई? बिकॉज एक एग्जाम्पल लो, A wants to marry B but A is already married to W1. ठीक है, अब एक सिचुएशन तो ये होगी दैट A एंड B दे willingly agree to marry each other and B को पता है कि A की ऑलरेडी वाइफ है एंड तब भी A और B आपस में शादी करने का सोचते हैं. दिस सिचुएशन हैज बीन कवर्ड अंडर 82 सबसेक्शन 1. ठीक है, जिसमें B को पता है A की ऑलरेडी एक वाइफ एग्जिस्ट करती है. ठीक है, बट व्हाट इफ सपोज A wants to marry B, he already has a wife living, but A B को नहीं बताता है that he already has a wife living. A खुद को पोर्ट्रे करता है as a single person, as a bachelor. ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली वो बी के साथ मैरिज सॉलोमनाइज करता है. इन दैट सिचुएशन द पनिशमेंट इज हायर. द पनिशमेंट इज ऑफ 10 years. Because not only is A committing bigamy, here A is playing fraud on B as well. ठीक है, A का जो कंडक्ट है वो क्या है? फ्रॉड्यूलेंट कंडक्ट है. So due to this particular situation has been assigned higher punishment. So now we know the train that monogamy is a condition for a valid Hindu marriage. ठीक है, bigamy is not allowed. Not only is it void under section 11, but it is punishable under section 17 of the Hindu Marriage Act. The punishment is given under section 494 and 495 of IPC and in under section 82 of Bharatiya Nyaya Sanhita.
Now let's discuss certain cases on this aspect. First is Bhaurao Shankar Lokhande versus State of Maharashtra, decided by the Supreme Court in 1965. Now, in this case, the Supreme Court observed that in order to prove that a particular person is liable for bigamy, first of all, the valid solemnization of second marriage needs to be proved. ठीक है? In order to convict a person for bigamy, valid solemnization of second marriage needs to be proved. बिकॉज एक चीज़ ध्यान से समझो, जब हम बोलते हैं, जब हम वैलिड सॉलोमनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर मान लो एक पार्टी है ए जो कि बी से शादी करना चाहता है एंड ही इज़ ऑलरेडी मैरिड टू W1. अब यहाँ पर अगर कोई सूट फाइल होता है तो सबसे पहले W1 सूट फाइल करेगी दैट ए हैज़ चीटेड एंड ए हैज़ मैरिड फॉर द सेकेंड टाइम, ही इज़ लायबल फॉर बिगमी. ठीक है, अब यहाँ पर ए चाहे तो ए अपनी फर्स्ट मैरिज को ही क्वेश्चन कर सकता है, राइट, द वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट मैरिज. तो कोई भी बिगमी का अगर क्वेश्चन अराइज होता है तो उसमें कोर्ट सबसे पहले देखता है whether the first marriage has been validly solemnized or not. ठीक है, अगर फर्स्ट मैरिज वैलिडली सोलमनाइज्ड होती है, ठीक है, तब ही क्वेश्चन अराइज होता है कि वेदर ए इज लायबल फॉर बिगमी और नॉट. ठीक है, अगर फर्स्ट मैरिज ही वैलिडली सोलमनाइज नहीं है, दैट मीन्स दिस पर्सन कैन मैरी सम अदर पर्सन. ठीक है, वो बिगमी के लिए लायबल नहीं होगा. तो सबसे पहले वैलिड सोलमनाइजेशन ऑफ फर्स्ट मैरिज प्रूव करना होता है. उसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है वेदर द सेकेंड मैरिज हैज बीन वैलिडली सोलमनाइज्ड और नॉट. यहाँ पर हम एक नॉर्मल लव अफेयर की बात नहीं कर रहे हैं, या फिर हम एक अटेम्प्ट टू मैरिज की भी बात नहीं कर रहे हैं. इट इज नॉट टॉक्ड अबाउट. दैट मीन्स अगर ए है वो अटेम्प्ट कर रहा है बी से शादी करने का, ठीक है, और W1 को पता लग जाता है दैट ए इज गोइंग टू मैरी बी, इस बेसिस पर वो बिगमी का सूट फाइल नहीं कर सकती है ए के अगेंस्ट. ठीक है, बिकॉज यहाँ पर ए ने बी के साथ अभी तक वैलिड सोलमनाइजेशन नहीं किया है मैरिज का, अभी सिर्फ अटेम्प्ट हुआ है मैरिज का. जब वो वैलिडली सोलमनाइज हो जाएगी, जब 7 फेरे कंप्लीट हो जाएंगे या फिर जो भी कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ही ए लायबल माना जाएगा बिगमी के लिए, अदरवाइज नॉट. नाउ देयर वाज अनदर केस ऑफ S. Nagalingam versus Sivagami. This was decided by the Supreme Court in 2001. अब इस केस में जो अक्यूज है उसने अपनी सेकेंड मैरिज सोलमनाइज करी एज पर द सेक्शन 7A ऑफ द HMA. ठीक है, दैट मीन्स उसने तमिलनाडु में वो मैरिज सोलमनाइज करी, अपनी ब्राइड को उसने थाली पहनाई, दैट मीन्स द मंगलसूत्र, एंड उसने उसको गार्लैंड पहनाया एंड उस रिंग्स एक्सचेंज करी. ठीक है, सो दिस वाज परफॉर्म्ड बाय दिस प्रोसीजर. नाउ द कोर्ट हेल्ड दैट द सेकेंड मैरिज विल बी कंसिडर्ड एज वैलिडली सोलमनाइज्ड. ठीक है, सेकेंड मैरिज वैलिडली सोलमनाइज मानी जाएगी बिकॉज इट हैज़ बीन वैलिडली सोलमनाइज एज पर सेक्शन 7A ऑफ द एक्ट, एंड इस वजह से जो अक्यूज है वो बिगमी के लिए लायबल होगा. नाउ देयर इज अ लार्जर इशू इन्वॉल्व हियर जिसको हमें समझने की ज़रूरत है. बिगमी इज प्रैक्टिस्ड
by the parties after conversion to Muslim faith. Because we know that Hindu Marriage Act doesn't allow bigamy, right? तो लोग क्या करते हैं, वो खुद को कन्वर्ट कर लेते हैं मुस्लिम फेथ में. They convert themselves and become Mohammedan because we know that under Muslim faith, limited polygamy is allowed. Limited polygamy is allowed. A Muslim male can take up to 4 wives. तो इस टाइप के बहुत केसेस आने लगे थे बीच में, इसमें पार्टीज खुद को कन्वर्ट कर रही थी बिकॉज ऑफ द रीजन दैट द पर्सन के नॉट डिवोर्स द इनिशियल वाइफ. ठीक है, जो मेल है वो अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं कर पा रहा था या किसी और भी रीजन की वजह से, इफ ही डिडंट वांट टू एंड द फर्स्ट मैरिज, तो उसके लिए वो खुद को मुस्लिम फेथ में कन्वर्ट करके मैरिज सोलमनाइज कर रहे थे. सो दिस इशू वॉज प्रॉपरली एड्रेस्ड बाय द कोर्ट इन द केस ऑफ सरला मुदगल versus Union of India. This was decided in 1995 by Supreme Court. Now, in this case, the issue was the man has converted himself into Muslim faith just to get married. ठीक है, उसने खुद को कन्वर्ट करा. इनफैक्ट द सेकेंड वाइफ दैट ही वांटेड टू टेक, शी ऑल्सो कन्वर्टेड हरसेल्फ टू मुस्लिम फेथ. ठीक है, एंड जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग मैरिड उसने भी कन्वर्ट कर लिया. एंड ही डिडंट पुट एन एंड टू द फर्स्ट मैरिज. जो उसकी फर्स्ट वाइफ थी उसके साथ जो मैरिज थी उसको एंड नहीं किया. ठीक है, एंड विदाउट एंडिंग द फर्स्ट मैरिज दिस पर्सन कन्वर्टेड हिमसेल्फ टू मुस्लिम फेथ. द वाइफ दैट ही वांटेड टू टेक, शी ऑल्सो कन्वर्टेड हरसेल्फ टू मुस्लिम फेथ, एंड देन दे solemnized their second marriage. Now what will be the status of the second marriage? This was to be decided by the Supreme Court. Now in this case the court observed that a person cannot take an advantage of any personal law. ठीक है, किसी भी पर्सनल लॉ का कोई पर्सन एडवांटेज नहीं ले सकता. इफ अ पर्सन इज कन्वर्टिंग हिमसेल्फ टू मुस्लिम फेथ जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग मैरिड फॉर द सेकेंड टाइम एंड विदाउट पुटिंग एन एंड टू द फर्स्ट मैरिज, देन इन दैट सिचुएशन द सेकेंड मैरिज विल बी वॉइड. ठीक है, तो यहाँ पर एम ने मुस्लिम फेथ में कन्वर्ट करके शादी तो कर ली, ठीक है, निकाह पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पर ये जो सेकेंड मैरिज है दिस विल बी कंसिडर्ड एज वॉइड. Why? Because he didn't put an end to the first marriage. So that means he will be held liable under section 494 of IPC and now section 82 of BNS. So you can also write down this observation. Please write this down. Just pause the lecture and write this down. It was observed that despite conversion and contracting of marriage under Muslim law, if a man married under Hindu law without putting an end to this marriage converts to Muslim faith and gets married for the second time, the second marriage would be void and he will be held liable under section 494 of IPC. So this was observed by the Supreme Court under the case of Sarla Mudgal versus Union of India, which was decided in 1995. Then Lily Thomas versus Union of India was decided by the court in 2000. This is also a landmark judgment on this aspect because first of all, the observation made by the Supreme Court in Sarla Mudgal case was itself in question. Observation under Sarla Mudgal case in question. Now, the facts of this case are such that there is a person M. He is married to W1. ठीक है, now he goes to a mosque, converts himself, and there is a person W2 who also converts herself. ठीक है, and they adopt Muslim names. ठीक है, दोनों हिंदूज हैं, दोनों मुस्लिम नेम्स ले लेते हैं. M takes the name of Muhammad Kareem Ghazi and W2 takes the name of Hina Begum. So दोनों ने अपने रिलीजन्स कन्वर्ट कर लिए, अपने नेम्स चेंज कर लिए, मुस्लिम नेम्स इन्होंने अडॉप्ट किए. ठीक है, बट क्या हुआ ना कि इन्होंने अकॉर्डिंगली अपने नेम्स चेंज कर मैरिज तो कॉन्ट्रैक्ट कर ली मुस्लिम फेथ के अकॉर्डिंग,
बट उसके बाद इन्होंने कभी मुस्लिम फेथ प्रैक्टिस नहीं करा. इनफैक्ट इन देयर लीगल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट्स, एटसेट्रा, their names are given as GC Ghosh and Vinita Ghosh. ठीक है. इनफैक्ट वो कभी मॉस्क में नहीं जाते थे, वो हमेशा टेम्पल्स को ही विजिट करते थे. इनफैक्ट उन्होंने अपने वीज़ा एप्लीकेशन में भी यही नेम्स रखे, विनीता घोष एंड जीसी घोष. एंड when their child was born, in the hospital registers also this name was only given GC Ghosh and Vinita Ghosh. Now in this case the court observed that no doubt a person has a fundamental right to adopt any religious belief. ठीक है, वो किसी भी religious belief में adopt कर सकता है, किसी भी religion में खुद को convert कर सकता है, and he has a right to practice that religion. ठीक है, but you cannot take advantage of any particular religion. Okay, so the observation that was made in the Sarla Mudgal case was upheld by the court in this case, and the court observed that in this case it is very clear that the parties converted themselves to Muslim faith just to get married, and they didn't intend to practice that religion any further. So it was observed that this person GC Ghosh is liable under section 494 of IPC. So this was the whole aspect of bigamy. Now we know that a bigamous marriage is not only void under section 11 but it is also punishable. But we also know that there are certain other types of void marriages as well. Let's discuss that. Come to section 11. Yes, so here it has been given specified in clauses first, fourth and fifth of section 5. First में हमें पता है bigamous marriages को void किया गया है. Let's discuss conditions fourth and fifth of valid Hindu marriage under section 5. So yes, this condition fourth states that the parties are not within the degrees of prohibited relationship unless the custom or usage governing each of them permits of a marriage between the two. And condition fifth states that the parties are not subpendas of each other unless the custom or usage governing each of them permits the marriage between the two. यानी कि वो जो दोनों पार्टीज है वो ना ही डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में होनी चाहिए एंड ना ही वो दोनों सपेंडाज होने चाहिए एक दूसरे के. ठीक है. And what are degrees of prohibited relationship and what are subpendas, we have discussed that in our earlier lectures. Please refer that. ठीक है. तो डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में भी नहीं होने चाहिए दोनों पार्टीज एंड द पार्टी शुड नॉट बी सपेंडाज टू ईच अदर. बट the exception has been given and the exception is regarding the custom or usage. If your custom or usage is allowing such practice, then in that case the marriage will be considered as valid. अगर किसी का कोई custom ऐसा है, किसी की कोई usage ऐसी है जो allow करती है that the person within a degree of prohibited relationship or the persons who are subpendas to each other are allowed to get married because of the custom or because of certain usage within their community, within their tribe, then in that case they can get validly married. ठीक है, वो valid solemnization of marriage होगा, वो marriage void नहीं मानी जाएगी अंडर सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट. बट एक और चीज़ भी समझो कि सेक्शन 11 में जो एक पनिशमेंट वाला एस्पेक्ट था वो हमें सिर्फ कंडीशन 1 के साथ गिवन था. दैट मीन्स विद ओनली विद बिगमस मैरिज. सब सेक्शन 4 एंड 5 के कॉन्ट्रावेंशन में हमारे पास उसका कॉन्सिक्वेंस है दैट द मैरिज विल बी कंसिडर्ड एज वॉइड मैरिज, बट नो सच पीनल एस्पेक्ट इज गिवन. ठीक है, वो पनिशेबल नहीं होगा, वो सिर्फ वॉइड मैरिज माना जाएगा. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग वॉइड मैरिजेस. थैंक यू.